Hello dear students, I hope all of you are doing well. And you know, in the last video we have covered all the thermodynamics theory and covering few important numericals. And I'm sure you will not find any kind of difficulty while doing those theoretical and practical questions. So in this video we will discuss another section of thermodynamics which has got name thermochemistry. ठीक है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आप देखोगे तो लास्ट में आपको दिखेगा. ठीक है. So this part of chemistry deals with the measurement of heat of reaction under given set of conditions using a calorimeter. यहाँ पर क्या ये देखो, ये क्या है, deals with measurement of heat of reaction means इस पार्ट में हम heat of the reaction we are going to find out the heat of the reaction. अब कोई रिएक्शन हो रही है, either it is absorbing heat or it is releasing heat. Now our concern is to study what amount of heat is released or absorbed. So this is why we learn thermochemistry. So here the basic thing we are going to use is calorimeter. Here the basic thing which we are going to use is calorimeter, through which we will study various things. Now next is heat of reaction. Let us start with the definition. It is the heat released or absorbed when molar quantities of reactants. Molar means 1 mole of the each reactants indicated by the stoichiometric of given reaction having completely reacted to form products. मतलब, for example, let us take one example so that you can understand it deeply. Let us assume this is x, 2x, 3y and gives a plus 2b. Let us assume this is a balanced reaction. So in the time being, what will happen? This x and this y will get exhausted and finally the product a and b will be formed. So thermochemistry is the study where we will study about the amount of heat released by their after completing this reaction. So अब यहाँ पे लिख दिया balanced reaction. Heat of the reaction means if this reaction after completing releases 100 kilojoule per mole of heat, then this 100 kilojoule per mole of heat will be called as heat of the reaction. अगर यहाँ पे ये चीज माइनस होती है, heat of the reaction if minus 100 kilojoule means system has lost. वहां जब प्लस 100 है तो सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी, जब माइनस 100 है तो मीन्स सिस्टम हैज लॉस्ट दैट मच अमाउंट ऑफ हीट एंड नाउ दिस हीट विल बी नोन एज heat of the reaction. So I hope you got my point. Now unit of heat of the reaction is kilojoule per mole, either kilocalorie per mole, but for the standard purpose we will use kilojoule per mole. किलोजूल पर मोल या जूल पर मोल, जनरली हम कैलोरी का यूज बहुत कम करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज जूल पर मोल और किलोजूल पर मोल. नाउ देयर आर two categories of reactions. First is exothermic reactions where heat has got symbol of minus Q, and the other category is endothermic reaction where heat is absorbed and the symbol before heat is positive. Now let us assume A plus B gives C and the delta H is equals to minus 50 kilojoule per mole. You know very well delta H is nothing but the heat released at constant pressure. है ना, heat released or absorbed at constant pressure is also known as enthalpy. So here enthalpy is equals to minus 50 kilojoule per mole. It means या फिर ऐसे भी देख सकते हो A plus B gives C plus 50 kilojoule. यानी कि आपको या तो रिएक्शन में ऐसे दे दिया जाए और या फिर आपको रिएक्शन में कुछ ऐसा लिखा मिले, तो इसका मतलब ये है कि अगर if it has been given directly that delta H equals to minus 50 kilojoule, then it means the reaction is exothermic and it is going to lose
-50 किलो जूल पर मोल व्हेन द रिएक्शन कंप्लीट्स। या फिर वो ऐसे लिख देगा A plus B gives C plus 50 किलो जूल पर मोल। प्लस 50 किलो जूल पर मोल यहाँ पे अगर वो लिख देता है तो इट मींस इट इज लूजिंग 50 किलो जूल ऑफ हीट पर मोल। या फिर दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है x plus 2y gives z delta H equals to plus 200 किलो जूल। या तो आपको ऐसे मिलेगा इट मींस सिस्टम हैज एब्सॉर्ब्ड 200 किलो जूल पर मोल। या फिर आपको ऐसे मिलेगा कि x plus y gives z और यहाँ पे इनिशियली 200 किलो जूल आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब है अगर रिएक्टेंट साइड लिखा है तो मतलब इतनी हीट एब्सॉर्ब हुई है। So that is how you can identify the reaction is either endothermic or exothermic and whatever be the process. Now, next part is factors affecting heat of the reaction. What are those factors due to which heat of reaction depends? So the first is heat measured at constant volume or at constant pressure. तो हम heat को दो तरह से measure कर सकते हैं. Either we can measure it at constant volume or we can measure it at constant pressure. So heat measured at constant volume, you know very well, is known as delta U. Delta U means internal energy. And heat measured at constant pressure is also known as delta H, means heat at constant pressure. I already told you that is the another name of enthalpy. Now QV or the heat absorbed at constant volume, which is delta U, experimentally measured in bomb कैलोरीमीटर और कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, आप चाहे तो यू कैन कंसल्ट टू एनसीईआरटी, you may be able to understand how does bomb calorimeter look like. तो यहाँ पे मैंने बनाया दिया है। एंड व्हाट इज QP? QP is heat measured at constant pressure. अब एक्सपेरिमेंटली इट इज मेजर्ड इन कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर यूज करते हैं एंड हियर इट इज कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर यूज करते हैं। मतलब दोनों कैलोरीमीटर का अलग अलग मैकेनिज्म है, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और एक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नाउ द फार्मूला वी विल यूज इज delta HR. HR means enthalpy of the reaction is equals to internal energy plus delta NG RT. आपको मालूम है ये आइडियल गैस का है, मैंने आपको डिराइव भी कराया हुआ है। एंड फॉर एनी गैस delta HR equals to delta UR plus delta PV, है ना, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Now we will use its application here. Now next is bomb calorimeter or the constant volume calorimeter. So how does it look like? Actually this is the outermost wall which is very insulating, means we try to make this wall completely adiabatic, which do not allows any heat to transfer from the system to surrounding. And the again one more chamber is present there where the reaction takes place. For example, I have taken here CH4 plus O2, यानी मीथेन का कंबशन हो रहा है यहाँ पे। So यहाँ पे कोई भी लिक्विड ले सकते हो, जनरली हम वाटर लेते हैं। एंड दिस इज थर्मोमीटर, है ना, थर्मोमीटर इज टू मेजर द इंक्रीज इन टेम्परेचर। भाई कंबशन होगा तो टेम्परेचर राइज होगा, और कितना राइज होगा ये हमें कौन बताएगा? थर्मोमीटर। नाउ दिस इज स्टीरर। अब वाटर यू नो वेरी वेल इट इज द बेड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हमें एक स्टीरर यानी घुमाने वाला होना चाहिए जिसकी वजह से वाटर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता रहे और टेम्परेचर कांस्टेंट मेजर हो। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया थिक वॉल्ड वेसल ऑफ हीट कंडक्टिंग मटेरियल। अब ये जो मटेरियल है दैट इज थिक वॉल्ड, है ना, थिक वॉल इसलिए क्योंकि फट ना जाए, एंड कंडक्टिंग इसलिए कि इसकी सारी हीट क्या हो, इस वाटर को मिल जाए। और ये वाटर जैसे इसका टेम्परेचर राइज होगा, दिस थर्मामीटर विल स्टार्ट शोइंग द रीडिंग। नाउ टेम्परेचर ऑफ वाटर T1 to T2, मान लो टेम्परेचर का वाटर का टेम्परेचर was initially at T1 and finally it became T2. So how we will calculate the heat measured at constant volume or internal energy? तो उसके लिए फॉर्मूला है mass of water into specific heat of water, यानी S water, इसे specific heat बोलते हैं, into T2 minus T1। इसको हम ms डेल्टा थीटा भी बोलते हैं, फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा यूज मिलेगा इसका ms डेल्टा थीटा। इसका एक न्यूमेरिकल भी मैं लास्ट में कराऊंगा।
तो ms डेल्टा थीटा मींस T2 माइनस T1। नाउ अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो टेम्परेचर वाटर का राइज हो रहा है वो प्योरली वाटर में ही सारी हीट तो नहीं आई होगी, वाटर कुछ हीट इस स्टीरर को भी दे रहा होगा और कुछ हीट इसके मटेरियल को भी दे रहा होगा और कुछ हीट इसमें भी एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो मतलब सिंपल सा है कि द एंटायर हीट रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस और द कंबशन ऑफ मीथेन इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड टू थर्मोमीटर और द वाटर सराउंडिंग बाय इट, है ना, बिकॉज few part of this heat is liberated with the stirrer and the material of the substance used। तो अब for an ideal purpose हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ms डेल्टा थीटा फॉर वाटर प्लस m2 s2 डेल्टा थीटा मान लेते हैं ये स्टीरर का है ना, प्लस m3 s3 डेल्टा थीटा मान लेते हैं ये इसके मटेरियल का है और एक आध और जोड़ देते हैं, मान ले इसके मटेरियल का भी होगा, कुछ अंदर रिलीज हो गया होगा एंड सो ऑन। तो ऐसे हम ये सारे ऐड करते हुए अगर चले जाएं तो दैट हीट विल बी QV और द हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो नेक्स्ट इज वाटर इक्विवेलेंट। व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट? इसका यूज आपको न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? इट इज द मास ऑफ वाटर दैट वुड एब्जॉर्ब सेम हीट that would be actually absorbed by stirrer, thermometer etc। मतलब वाटर इक्विवेलेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि मान लेते हैं कि कुछ हीट स्टीरर ने एब्जॉर्ब करी, है ना, तो इसका जो वाटर इक्विवेलेंट हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि स्टीरर का टेम्परेचर चेक करने लगे, चलो भाई स्टीरर लाओ तुमने थर्मोमीटर लगा के देखें कितना टेम्परेचर, हम ये नहीं कर सकते। हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते, क्या यूज करते हैं, वाटर इक्विवेलेंट फॉर स्टीरर। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या हो गया कि मान लेते हैं स्टीरर ने Q हीट एब्जॉर्ब करी और ये जो Q हीट है वो मान लो 1 ग्राम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो हम जो हीट एब्जॉर्ब बाय स्टीरर है उसकी जगह हम यूज करेंगे हीट एब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का इक्विवेलेंट, यानी कि किसी भी चीज का इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वाटर, है ना, क्योंकि वाटर की हमें मोस्ट ऑफ द चीजें पता होती है तो इसलिए हम वाटर इक्विवेलेंट यूज करते हैं। So mass of water that would absorb same heat that would be actually absorbed by the stirrer or the thermometer etc। In fact thermometer is also using some heat, है ना, तो जितनी हीट आ रही है अब हम रफली हम इसको यूज करते हैं तो फाइंड आउट, बिकॉज ये हम इजीली यूज मतलब इजीली हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। Now delta U or the internal energy or the heat measured at constant volume is equals to mass of water, ठीक है, यहाँ पे जो वाटर का मास होगा प्लस वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट मींस जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब करी जो कि इक्वल है द सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। हीट वाटर इक्विवेलेंट फॉर स्टीरर, वाटर इक्विवेलेंट फॉर दिस थिंग, वाटर इक्विवेलेंट फॉर थर्मोमीटर, सबका सम, तो मास ऑफ वाटर प्लस वाटर इक्विवेलेंट इनटू S यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा T। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन द नेक्स्ट स्लाइड we will try to study physical state of allotrop, effect of temperature etc। हाँ, तो now the next important thing is physical state or allotropic form। So in this topic I am going to discuss that if it is H2 gas plus half O2 gas gives H2O liquid। मान लेते हैं कि H2 gas और O2 gas मिलके H2O liquid बना रहे हैं and the change in enthalpy of the reaction is delta HR equals to x kilojoule per mole। तो ध्यान से सुनना नेक्स्ट लाइन, if again the same thing is happening H2 gas plus half O2 gas but here H2O gas is formed, यहाँ पे H2 liquid था, यहाँ पे H2O gas था, तो because state is different hence enthalpy change for the reaction will also be different। That is why I have written here delta HR equals to y kilojoule per mole and यहाँ पे x is not equals to y मैंने लिख दिया। मतलब आपको ध्यान रखना है कि सबकी स्टेट सेम रहेगी तो
एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन भी सेम रहेगी, लेकिन स्टेट चेंज होते ही एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन विल आल्सो गेट चेंज. नाउ in case of allotropes, for example, carbon has two allotropes. First is carbon diamond. Let us assume the reaction is taking place. Carbon diamond plus O2 gas gives CO2 gas. Let us assume the enthalpy change of this reaction is equals to 1 kilojoule per mole. But again देखो, इधर भी गैस है, इधर भी गैस है. कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस gives CO2 गैस. देखो ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड. But the matter is, this is another allotrope which is diamond and this is another allotrope which is graphite. That is why both of the enthalpy will be different. Hence I have written here A is not equals to B. तो आपको स्टेट तो ध्यान रखना ही है, साथ में allotropes के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा. Now next is effect of temperature. This is very important because we will derive Kirchhoff's equation. Effect of temperature. मान लेते हैं कि there is a reaction AA plus BB gives CC plus BD. At temperature T, enthalpy change or the molar enthalpy of A is HA. ठीक है. For B it is HB, for C it is HC and for D it is HD. है ना? Multiplying it by its molar coefficients, so it will become AHA, BHB, CHC, DHD. Now if we are going to find out the enthalpy change for the reaction, this reaction, यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि what is delta HR, तो आप कैसे find out करोगे? You have to find out by, मान लेते हैं we are talking at temperature T1, तो delta HR at T1 is equals to summation of enthalpy of all the product, यानी कि DHD plus CHC minus summation of enthalpy of all the reactant, means माइनस के बाद ब्रैकेट में प्लस AHA प्लस BHB. तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. अब यहाँ पे ध्यान रखना कि एट टेम्परेचर T1 इन सब की वैल्यू जो है ना एट T1 पर है. ठीक है, तो एट T1 पर ही जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट विल बी समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. अब यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यू रखूंगा CHC प्लस DHD माइनस AHA प्लस BHB. यहाँ पे चीजें होगी खत्म. बट इफ समवन सेज दैट टेम्परेचर इज चेंज्ड, it has became T2. Now the point is at T2 the enthalpy value, मतलब HA तो नहीं रहेगा because temperature change होते ही enthalpy भी change हो जाएगी. तो यहाँ पे T1 पे HA, HB, SC, HD था, but at T2 अगर मान लेते हैं at temperature T2 this is like HA dash, HB dash, HC dash, HD dash मान लेते हैं ये होता. तो हम फिर से क्या करते, अगर हमें T2 पे निकालना है तो हम इसे सिंपली इसके मोलर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते और फिर हम DHD डैश प्लस CHC डैश माइनस फिर ब्रैकेट में प्लस AHA डैश BHB डैश कर देते. हमारा अगेन टेम्परेचर T2 पे क्या आ जाता? एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, अगेन दिस रिएक्शन. बट द पॉइंट इज हियर द एट टेम्परेचर T2 this value, these values are not given. Hence we have got only this value at temperature T1. So the point is how to find out the enthalpy change for the reaction at the changed temperature. So there is nothing different to find out, nothing difficult to find out. What we will simply do is just we are going to make this suitable for T2, है ना. हमारे पास T2 हमारे पास इनकी वैल्यू नहीं है, हम इसको T2 पे बना देंगे. तो कैसे बनाएंगे? देखो AHA at T1 प्लस H, डेल्टा H की वैल्यू आपको मालूम है NCP डेल्टा T होती है. तो देखो AHA प्लस at T2 क्या होगा? देखो T1 से T2 इंटीग्रल A CP है ना, N क्या है? A, यहाँ पे N CP for A into dt, lower limit T1 upper limit T2. Now for B, अब देखो HB जो वैल्यू थी this was at T1. Now I am going to convert it for temperature T2. So there will be a small change.
सो BHB प्लस अगेन T1 से T2, फिर NCP डेल्टा T हम यूज करेंगे, N क्या है इसका B, CP फॉर B एंड DT, ठीक है। ऐसे करके हमने HA भी निकाल लिया, HB भी निकाल लिया, SC भी ऐसे निकाल लेंगे, HD भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, एंड फाइनली व्हाट विल वी डू, डेल्टा HR एट T2 यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन एट T2 हम क्या करेंगे, सिंपली ये क्या है, ये A है, ये B है, तो हम क्या करेंगे C और D का प्लस करके माइनस उसमें A और B का कर देंगे, जो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे किया था, बस इसमें ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जब मैं इन पूरे को ऐड करूंगा, याद ध्यान से सुनो, जब मैं पूरे को ऐड करूंगा तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, देखो ये हमारे पास कॉमन होगा, BHB हमारे पास कॉमन होगा, CHC कॉमन होगा, DHD तो कॉमन होगा, बस डिफरेंट क्या है, ये वाला टर्म C CP C DT, D CP D DT, ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, इंटीग्रल T1 से T2 कॉमन होगा। तो मैंने देखो दिस माइनस दिस, ये थिंग अगेन कॉमन आ जाएगी। देखो भाई मैथ्स है, थोड़ा सा इसे सॉल्व करना, कैलकुलेट करना, आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो देखो डेल्टा HR T2, जब मैं इसको ये वाली चीज कॉमन लेके बाहर निकाल लूंगा तो ये वाली चीज क्या है, दिस इज डेल्टा HR T2, तो मैं इसे एज इट इज लिख दूंगा, और बाकी ये जो सब कॉमन है इसको मैं एक साथ लिख दूंगा। तो देखो एक साथ कैसे हुआ, T1 से T2, फिर C CPC है ना, प्लस D CPD माइनस A CPA प्लस B CPB, और ये पूरा DT। तो ये क्या है, यहाँ पे N N N N N CP 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 एंड DT। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करूंगा, डेल्टा HR T2 में से डेल्टा HR T1 माइनस कर दूंगा। देखो डेल्टा HR T2 ये वाला टर्म इधर आ गया, तो माइनस डेल्टा HR T1 इज इक्वल्स टू, अब जो कॉमन वाला टर्म है, तो देखो ये CPC प्लस DPD माइनस CPA माइनस CPB, तो उसको हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, डेल्टा CP, यानी कि CP फॉर द प्रोडक्ट माइनस CP फॉर द रिएक्टेंट। इतना हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 एट DT, ये हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ओवरऑल में क्या करूंगा कि अगर मैं इसे T1 से T2 कर लूंगा, मान लेते हैं कि हम वहां पे CP, इसका डेल्टा CP हमने निकाल लिया, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा CP इंटीग्रेट करके बाहर रख दिया, और ये जो DT टर्म है वो आ गया नीचे, है ना, ये एज इट इज इन दोनों के नीचे आ गया, ये रहा, और DT मींस T2 माइनस T1। अब देखो इस केस में CP तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपली CP जो कांस्टेंट वाले टर्म से बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहां पे दिखा देता हूं, मैथ्स में बायो वाले बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इतना कंफ्यूजन की बात नहीं है, बिकॉज आपको फाइनली जो फॉर्मूला मिलेगा उस पर फोकस करो। देखो हमारे पास ओवरऑल रिलेशन क्या था, HR T2 इक्वल्स टू डेल्टा HR T1 प्लस T1 से T2 डेल्टा CP एंड फॉर द रिएक्शन इनटू DT। देखो इसको मैं फर्दर डेल्टा HR T2 ये माइनस हो गया, डेल्टा HR T1, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करूंगा तो डेल्टा CP बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट, इनटू ये T1 से T2 DT का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या आएगा, T2 माइनस T1। अब क्या करूंगा, इसे सीधा ले आऊंगा, डेल्टा HR T2 माइनस डेल्टा HR T1 अपॉन T2 minus T1, that is delta CP for the reaction. Now this reaction is known as Kirchhoff's equation. इसी को हम बोलते हैं Kirchhoff's equation. आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये तो था एंथैल्पी के केस में। अगर मैं इंटरनल एनर्जी के केस में करूंगा तो इंटरनल एनर्जी इज आल्सो स्टेट फंक्शन, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अगेन ये डेल्टा HR की जगह में डेल्टा UR कर दूंगा, UR सेम चीज है बिकॉज बोथ आर स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये CP की जगह क्या जाएगा, CV, ठीक है, दैट्स ऑल। ये क्या बन गया, UR, ये क्या हो गया
यू आर, ठीक है, और ये Cp की जगह बन गया Cb, और ये वाला एज इट इज टर्म नीचे आ गया यू आर और ये बन गया Cb। That's all. Again this is the Kirchhoff's equation। देखो पहली Kirchhoff's equation एंथैल्पी के टर्म्स में मैंने यहाँ लिख दी है, अगली Kirchhoff's की इक्वेशन मैंने इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में यहाँ यूज कर लिए। और एक मजे की बात है, दिस थिंग हैज बीन ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी में ये चीज दी हुई है, ठीक है, तो इसे सीरियसली लेना। कहीं सोचो कि सर बहुत ही उटपटांग चीजें पढ़ाते हैं, ये सब चीज काम की है, कुछ भी हम अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करते। नाउ व्हाट इज डेल्टा Cp? इट इज द summation of Cp of product minus summation of Cp of the reactant। और अगर मैं यहाँ पे Cv पूछूं व्हाट इज Cv, तो डेल्टा Cvr equals to summation of Cv product minus summation of Cv reactant। So that is all। Now next topic, various type of heat of the reaction। अब यहाँ से आपको NCERT थोड़ा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, ये सारी चीज NCERT में है जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे से भी पढ़े और NCERT को भी पढ़े एक बार। Various types of heat of the reaction। So first type of heat of the reaction is standard enthalpy of formation। Standard term we only use when we are taking 1 mole of a substance। अगर 1 mole के अलावा मास में ले लूं, ग्राम में, केजी में, तो वहां पे स्टैंडर्ड टर्म हट जाएगा, सिर्फ एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड अगर है तो यहाँ पे H नॉट आ जाएगा, सिंबल इज डेल्टा H नॉट F। Now what is this? It is the enthalpy change when 1 mole of a substance is formed from its element in their standard state। मान लो 1 mole भैंस बनी है ना, 1 mole भैंस कहां से बनी? ऐसी चीजों से बनी जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो किससे बनी? मान लो 4 टांग से बनी, 4 टांग लग चिपका दी, पूंछ चिपका दी, और सर चिपका दिया, बॉडी चिपका दी, आंखें चिपका दी, those are standard। It is the enthalpy change when 1 mole of a substance is formed from its element। याद रहे फॉर्म हो रहा है कंपाउंड एंड द रिएक्टेंट्स आर एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट होना चाहिए एंड इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अभी बताऊंगा चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट। तो फॉर एनी गैस शुड बी आइडियल, तो गैस क्या होनी चाहिए? आइडियल होनी चाहिए, और जो प्रेशर होना चाहिए दैट शुड बी 1 bar। For an aqueous solution, if we are talking about aqueous things, then we will take molarity, likewise 1 mole per liter, and the pressure should be at 1 bar, ठीक है। And for solid and liquid, what does standard state means? It means it should be pure and at 1 bar pressure, ठीक है। Now another thing by which we can decide the element is in a standard state or not is that standard state of an element is generally the most stable state of element at 1 bar pressure and at temperature of interest। means जनरली हम टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया टेम्परेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। मींस द पॉइंट इज अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट किसी एलिमेंट की हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इट मींस द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट एट 1 bar प्रेशर एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब 1 bar प्रेशर पर जो कोई भी चीज है जो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसको हम लेते हैं उसका मोस्ट स्टेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। जनरली आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे बात होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 bar प्रेशर पर हाइड्रोजन एट 25 डिग्री सेल्सियस पे जनरली गैस होता है ना, सॉलिड या लिक्विड नहीं होता। दैट इज व्हाई हाइड्रोजन का H2 गैस लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम आयरन की बात करें 1 bar प्रेशर पर 298 केल्विन पर आयरन इज सॉलिड। If 1 bar pressure 298 केल्विन पर ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन विल बी गैस। अगर मैं बात करूं ब्रोमीन की 1 bar pressure 298 केल्विन ब्रोमीन रिमेन्स लिक्विड। 1 bar 298 आयोडीन इज सॉलिड। 1 bar 298 केल्विन सल्फर एग्जिस्ट एज सल्फर रोम्बिक। 1 bar
298 केल्विन पर कार्बन, डायमंड भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है। इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल इज ग्रेफाइट, ध्यान रखना। सल्फर की बहुत सारी फॉर्म होती है, रोम्बिक होती है, मोनोक्लिनिक होती है, बट रोम्बिक इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल। फास्फोरस में एक एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया भी था, केवल व्हाइट फास्फोरस है। व्हाइट फास्फोरस बहुत ही कम स्टेबल होता है, ओनली वन ब्लैक फास्फोरस होता है मोर स्टेबल, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्शनली फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस ही लेते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट इज असाइन्ड 0। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे मान लो कि पार्थिव का वजन 55 kg है, 55 kg, तो किसके रिस्पेक्ट में? तो IUPAC ने एक बार दिया जिसका वेट उसने क्या माना, 1 kg। तो पार्थिव का वजन जो है, वेट जो है, ये 1 kg के रिस्पेक्ट में ऐसे 55 ब्लॉक्स अगर रखेंगे तब जाके पार्थिव का वेट आएगा। तो पॉइंट इज क्वाइट सिंपल कि हमें किसी के रिस्पेक्ट में चीजें देखनी होती है, ऐसे ही हमें इनके रिस्पेक्ट में देखनी है। मतलब जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज असाइन्ड टू बी 0, मतलब उसे 0 मान लिया गया है। होता है कि नहीं होता है हमें मतलब नहीं, हमने उसे 0 मान लिया। फिर से एक और एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कोई नंबर स्केल है, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। तो हमने अपने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को क्या मान लिया है, 0। लेकिन अगर मैं नंबर स्केल की बात करूं तो ये हो सकता है यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ पे 5 हो। तो हमारे 6, 7, 8, 9, 10, मतलब सिंपल ये है कि हमारे नंबर स्केल पे भले इसका नंबर 5 हो, बट अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन इट इज कंसिडर्ड टू बी 0। तो हमारे स्केल का 5 इसका 0, हमारे स्केल का 6 इसका 1, ठीक है, हमारे स्केल का 7 इसका 2, हमारे स्केल का 8 इसका 3 एंड सो ऑन। तो हमने इसी तरह से, जैसे इसमें हमने 0 मान लिया है, ओरिजिन मान लिया है, वैसे ही इसमें भी हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज असाइन्ड टू बी 0। हम उसका भी क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में बाकियों का चेक करते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। नाउ फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कार्बन इज मोस्ट स्टेबल एज ग्रेफाइट। अब स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 बार 298 केल्विन पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज असाइन्ड 0 इज इक्वल टू 0। देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड इज नॉट 0 बिकॉज वी कंसीडर ग्रेफाइट एज मोस्ट स्टेबल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कंसीडर्ड टू बी 0 क्योंकि हमने हाइड्रोजन को 1 बार प्रेशर पे और 298 केल्विन पर क्या देखा है, गैस देखा है, तो इसलिए हम इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या मान के चलते हैं, 0। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड इज आल्सो 0 बिकॉज़ इट इज द मोस्ट स्टेबल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस व्हाइट इज कंसीडर्ड टू बी 0 क्योंकि हमने उसको मोस्ट स्टेबल मान लिया है। होता है नहीं होता है दैट इज गॉड नोस। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस ब्लैक ऑब्वियसली नॉन 0 नहीं होता क्योंकि ये मोर स्टेबल नहीं है हमारी असम्पशन के हिसाब से, इनफैक्ट ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज यहां भी होगा, इक्विलिब्रियम में भी होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी होगा, ये आपको याद रखना है कंफर्म। डेल्टा H नॉट F फॉर H आयन एक्वस इज इक्वल टू 0। ये हम अपनी कैलकुलेशन में यूज करने वाले हैं, याद रखना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H आयन एक्वस इज इक्वल टू 0। सो दैट इज ऑल। अगले स्लाइड में देखते हैं, लेकिन वीडियो कितनी बड़ी है, अगली वीडियो में देखते हैं।